Hello, Hello, how are you doing? I'm doing fine. So, can you just briefly introduce yourself? Okay, so my name is Farak Sharma. I'm from Ajmer, Rajasthan, and I'm currently a second year student from Center for Liberal Education. And I have always been fascinated by how math and logic can explain real world systems. And that curiosity drives me towards this domain of quant. So in summers, I built the Bitcoin intraday strategy in summer quant, which was considered tier one. And I have also been exploring game theory and stochastic models to understand sports strategies for my course project in IE 401. And additionally, I have taken courses like data structures and algorithms and probability and random processes this semester. And I'm currently doing a seminar on Markov chain. So in Center for Liberal Education, a seminar is compulsory for every student in every semester, in which we can choose a topic of our own choice. And in future, I am planning to take courses like derivative pricing, stochastic calculus, queuing systems. Mm, Besides academics, I am a long distance runner and cyclist, and I have represented IIT Bombay in athletics and inter IIT last year, and some various tournaments like IIT Kanpur ka Sports Fest and Mumbai Zonals. Sports have really taught me consistency and how to be disciplined in training as well as outside training, which I think is crucial for solving complex problems. Can you just go through your summer of quant strategy? What did you build? Yeah, so in that, I use volume size detection with SMA 50, which is simple moving average for the last 50 periods, and RSI 14 filter. So I didn't write the whole code on my own because I don't know how to do that at that time. So I just search for different logics around the internet, compile them. That's it. So, can you explain the strategy? So let's say the price is mm, uh, so there was some benchmarks for, let's say, some X price. If the price was here, we will stop trading. And so the purpose of this script was to load historical price data, which was like I was not shocked by my result because it got 25x over 4 years. But if I didn't do any trading, if I just invest my $1,000 at that time in Bitcoin for 4 years, it would have given 24x return. So I don't know why that strategy was considered top 10. And yeah, so the indicators that I used was average true range, SMA 50, RSI. So the core idea was to enter trades when there's a large spike in trading volume, but only when the trade trend and momentum agrees. So exit when the price goes below the certain threshold. And So, when the volatility is high and momentum is supporting it, so you are expecting a long going trend, increasing trend. So, you are entering there, right? for high volatility, I don't know if it for high volatility it would be short, no. Why would it be long? High volatility and momentum, and the price is rising.
Then I'll go for long. And which all indicators did you use for momentum? So for momentum, which You can this share your was, screen as well. yeah, sure. Entire screen? Entire. Yeah, sure. Yeah, so I used RSI, the latest index. My screen visible or no? No, visible. Yeah, Yeah, so for momentum, you use RSI yeah, and just RSI for momentum. yeah, only RSI. And what all other indicators did you use? SMA, SN, 50 and ATR. 8. Yeah. Yeah. Can you explain how what is the formula for ATR? How ATR calculates? So for ATR, we see the difference between the high of current day and the close of the previous day. So it's the difference. So if the difference is more than some, let's say we have to decide some threshold, and if the price goes below that, then we'll stop. And what is the condition for overbought in RSI? For if I don't know, I don't remember that. Overbrought. Okay, so it was something like um, related to market. Let's say market is moving at 10%, and if the stock or share is going far above that, like 15 and 20%. I don't remember that. So it is RSI is greater than 70, then it is overbought, if you remember. Yeah, somewhere around 70 or huh, 70 or something. How did you use SMA in this strategy? SMA is a simple moving average for the last 50 periods, and we will trade around SMA's 50. I used the same strategy when I was building using ATR and RSI. But later on, I realized that it is actually overfitting. Okay. So I'll just share my doc as well. You will see what I'm talking about. Okay. So I think after like using ATR, RSI, Bollinger Bands, everything uh, to make the strategy efficient, it was not work. It was just the high benchmark return which was giving a good profit, like you just said, 24 times, and Yeah. nothing much to do with our strategy. Yeah. So, So I like, had that doubt that why this did you was. try it on 2024 to 2025 data, the strategy on the No, last I one? didn't try. I I think tried this on the data which was given and which was the hidden test case. I tried on both of them.
at I think just identifying try it on the last 1 year data. It, failure. it won't work Yeah. on that. Uh, okay, so except for this, you were telling me about game theory, something, right? So I am currently looking for studying game theory concepts like Nash equilibrium. So I have a course which is IE401 Topics and Operational Research, which is taken by Professor Narayan Rangaraj. In that course project, so basically in that course we are studying sports strategies and transport. So it's said to everyone to do a project around these things. So I was thinking about doing it on game theory and sports strategy. So the Nash equilibrium and all that. I'm studying right now. What all have you studied in game theory? I didn't study game theory formally, but I have solved some of the problems related to that in learner space. Okay, what have you solved in learner space? So there was a problem like chess wala. Mhm. I don't remember the whole statement, but there were two statements in chess, and the question was like, this is they both are similar or they are not similar, which is a winning strategy and something like that. Can you show me some docs or anything you made, any code you wrote for that? There was no code, there was only logic, I think. Okay, so just explain me what was the logic, what was the question, Okay. what all did you do? I don't remember the question completely, but the question was like, if check it. Yeah, so this was the question. So there were two players, uh, long chase. Yeah, this was the question. I don't have the problem statement, but there were two statements. Like there exists a strategy. These are the statements. I have a guarantee plan to ace the exam. Oh, this is exam. ठीक है, तो वो बता दे तूने क्या किया था इसमें, या क्वेश्चन अगर याद नहीं है तो तूने क्या सीखा ये बता दे। तो मैंने ये सीखा कि if मतलब ठीक है, लर्नर स्पेस वगैरह अगर रिपोर्ट सबमिट कर देती है और नहीं किया एक्चुअल में कुछ, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये बता दी कि तूने क्या एक्चुअल में सीखा है। so there was some law. So कुल मिला के मैंने ये सीखा था कि कोई स्टेटमेंट है हम्म, तो उसका इम्प्लीकेशन कैसे होता है दूसरे स्टेटमेंट पे. सो हम्म, forward implication was there and there was no backward implication. हम्म, So the main thing that I learned was that. So not every time there will be some backward implication. Both मतलब statements look similar but they are different. एग्जांपल दे। Example, ठीक है, स्किप करते हैं लर्नर्स के साथ।
ये बता, मार्कोव चेन एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेस वाला जो कोर्स प्रोजेक्ट है, सेमिनार, सेमिनार। अभी अभी इसमें क्या किया है, क्या क्या अभी देखा है? इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, बट मेनली मार्कअप चेन डिफाइन करी है, थोड़े बहुत एग्जांपल करे हैं। हाँ, क्योंकि अभी इसमें मार्कोव, टाइम है, तो सबमिशन थोड़ा लेट होता है। ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा है मार्कोव चेन? तो मार्कअप चेन के बारे में पढ़ा। मार्कअप चेन, दिस इज जस्ट इन सिंपल वर्ड्स, इट इज योर करंट स्टेट इज depends only on the previous state, not beyond that. योर करंट स्टेट डिपेंड्स ऑन प्रीवियस Solely स्टेट, on the नॉट, solely on the your future state current your future state depends solely on the current state, not on the previous states. करेक्ट, ठीक। For example, like random walk, zero plus minus. रैंडम वॉक क्या होती है? Random walk is where either we go in this direction or this direction. So there was an example. You are at 0, comma 0, and you can either go right or go left. So let's say I go right. I am at 1, comma 0. So my next state will only depend on 1, comma 0, not on 0, comma 0. Either I can go to that 0, comma 0 or 2, comma 0. ये समझाना, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन यूजिंग एलएसटी, इसमें क्या किया था? ये तो मतलब विंटर इन डेटा साइंस था, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझ आता नहीं था उस टाइम पे। मतलब अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं आता फाइनेंस का, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी का ही आता है। एंड तब जो मतलब ठीक है, देखे मत अभी, एक बार जो भी रिकॉल कर पा रहा है कि क्या क्या किया था। ठीक है, तो उसमें भी कुछ तो फिल्टर्स यूज़ किए थे, बोलिंगर बैंड्स किया था। एंड हम्म, जो हिस्टोरिकल प्राइस थी उसके प्लस और माइनस में कुछ तो करा था। और वो मेरे को लग नहीं रहा था कि वो मेरा सक्सेसफुल है, क्योंकि उसका चार्ज बहुत ज़्यादा कमा रहा था। नहीं, आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा कमा रहा था। कभी कभार तो नेगेटिव आ रहा था किसी किसी स्टॉक के लिए। तो इंटरव्यू शेड्यूलिंग सिस्टम, ये क्या चीज़ है? इंटरव्यू शेड्यूलिंग सिस्टम ये था। अभी जो प्लेसमेंट टीम है ना, प्लेसमेंट वेब डेव टीम का, वो रिक्रूटमेंट ओपन था, तो हम्म, उसमें वो बनाना था इंटरव्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो वो सी प्लस प्लस में बना दिया, और फिर उसको मैंने प्लेटफॉर्म पर स्केल करने का ट्राई कर रहा था। क्या बनाया तो था, कैसे कैसे किया? मतलब उसमें कंस्ट्रेंट दिए हुए थे कुछ कुछ की, नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ पैनल्स, हम्म, ये सब। तो वो क्या बोलते हैं उसको, बैक ट्रैकिंग एंड कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन, ये सब किया था। इजी था वो, समझा एक ज़्यादा बार, मतलब जल्दी था। एल्गोरिथम समझा कि क्या यूज़ की थी? क्या? एल्गोरिथम समझा क्या, कैसे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई किए, क्या यूज़ किया? क्लासेस डिफाइन करी हम्म, एंड चेक्स डाले थे। एंड ओके, सो उसमें ऐसा था कि जैसे दो स्टूडेंट हैं और तीन कंपनीज हैं। तो किसी किसी कंपनी में शॉर्ट लिस्ट है, और प्रायोरिटी उसको देनी थी जिसकी कम शॉर्ट लिस्ट चाहिए है। तो उसका इंटरव्यू पहले ले लो। एंड मतलब उसमें एज कुछ लॉजिक नहीं था, सिर्फ चेक करना था कि क्लैश हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई थिंक इंटरव्यू शेड्यूलिंग प्रॉब्लम इतनी इजी तो नहीं है, कि मैंने भी जितनी देखी है कि बहुत ज़्यादा ही मतलब देयर इज नॉट अ फिक्स सोल्यूशन, और हर बार आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो चीज़ों को, कि अगर बहुत सारे लोग हैं, उनके बहुत सारे इंटरव्यू पैनल्स में हैं, हम्म, और कैसे आप ऑप्टिमाइज करोगे कि मिनिमम नंबर ऑफ क्लैशेस हो, और आपको एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि
मतलब आपको डेटा दे दिया है, लेकिन आपको ये भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा स्कोप ऑफ एरर की, ओनली 30 मिनट्स नहीं चलेगा इंटरव्यू, तो बहुत ही नहीं, ज़्यादा। मेरे टाइम पे ये सब नहीं था। मेरे टाइम पे एकदम सिंपल था, मतलब मैक्स 5 स्टूडेंट्स थे और मैक्स 3 या 4 कंपनीज थी। तो ठीक है। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है और 5 स्टूडेंट हैं, 3 4 कंपनी है। हम्म, एक स्टूडेंट की लेट्स से 3 में शॉर्टलिस्ट आई है, एक की 2 में शॉर्टलिस्ट आई है, एक की हम्म, चारों में आ गई और एक की एक में आई है। हम्म। तो अब तू कैसे करेगा इसको, किसको प्रायोरिटी देगा, क्यों देगा? मतलब और प्रायोरिटी भी किसको कुछ देनी है तो। कंस्ट्रेंट्स, और भी कुछ कंस्ट्रेंट्स है कि इतने घंटे का इंटरव्यू, हर एक कंपनी के अलग अलग फिक्स्ड लेंथ फिक्स ऑफ। था हाँ, मतलब हाँ। इंटरव्यू का ड्यूरेशन फिक्स था। नंबर ऑफ राउंड दिए हुए थे, कितने होंगे, एक या दो ही थे राउंड। ठीक है। और जिस बंदे की सबसे कम शॉर्टलिस्ट है उसका इंटरव्यू सबसे पहले करा दो, जिससे वो सबसे पहले फ्री हो जाए। जिससे पहले सबसे पहले फ्री नहीं हो जाए, जैसे अगर अपन उसका बाद में ले रहे हैं तो हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि अपने जो टाइम बाउंड है उसके बाहर चला जाए। अच्छा। मतलब अच्छा, तो उसका जैसे मेरी, एक भी जैसे इंटरव्यू ना किसी हो। की 4 में आई है, जैसे हाँ, जैसे किसी की 4 में आई है, तो उसका अगर एक बाहर जाता है तो दैट इज बेट नॉट बेटर देन किसी का एक में ही है और वो बाहर चला जाए। तो बस इन इतने ही कंस्ट्रेंट्स है इस इंटरव्यू शेड्यूल, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हाँ, नहीं कंस्ट्रेंट। डीएसए कितना सीखा था एसओएस में? एसओएस में जो ड्राइवर की शीट है ना, ड्राइवर की शीट हाँ, 50% कर दी थी। मतलब डायनेमिक ग्राफ आते हैं। ग्राफ्स नहीं करा, ग्राफ्स अभी पढ़ रहा हूँ, ग्राफ्स अभी कोर्स में पढ़ लिया। डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर ली। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अब कोर्स के लास्ट में है, तो मतलब थोड़ा बहुत पता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, क्योंकि जैसे रिकर्शन होता है तो रिकर्शन में एक एरे डिफाइन कर देते हैं, उसके अंदर सारा उसको पता है। ठीक है, तो एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन ये ट्राई कर। सी एस, सी एस। हम्म, करा हुआ है क्वेश्चन। मतलब जो एसओसी था, अप्लाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सीपी, उसमें एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो पूछ पर ले। ये वाली जो साइट है, इससे डर लगता है थोड़ा सा। हाँ, है डरा मुझे इसको। लीड कोड पे थोड़े बहुत करे हैं। लीड कोड पे अराउंड 100 समथिंग प्रॉब्लम सॉल्व की थी, समझ में की थी, क्योंकि ड्राइवर की शीट लीड कोड पे डायरेक्ट करती है। मीडियम कितने इजी कितने हार्ड कितने हैं? क्या? 110 120 जो किए हैं उसमें मीडियम कितने इजी कितने हार्ड कितने हैं? वही वही देखिए। अराउंड 62 है मीडियम, और इजी 44 है, हार्ड 4। प्रोबेबिलिटी करिए अभी तक फॉन्ट के लिए? ग्रीन बुक, ग्रीन बुक 50% सॉल्व कर ली थी। फिर प्रोबेबिलिटी का आ गया, अब वो आता नहीं था दिसंबर में, तब फिर छोड़ दी। 50% कर ली तो फिर तो आई थिंक लगी हुई है उसमें प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन के ऊपर तो। फर्स्ट 50% में शायद नहीं लगी, क्योंकि लगेगी यार, मतलब फर्स्ट 50% तो पूरी प्रोबेबिलिटी ही है। मतलब वो बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आता ही था, पर वो वाला नहीं आता था, स्टॉक्स वाला। ठीक है, तो फिर फर्स्ट 50% पे करते हैं। यहाँ तक, इधर तक चैप्टर, यहाँ थोड़ा बहुत किया था प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, फिर स्टोचैस्टिक प्रोसेसेस आ गया था, स्टोचैस्टिक प्रोसेसेस में छोड़ दिया। तो ये सारा तो आता है। एक क्वेश्चन भेजा चैट पे, करा हुआ क्वेश्चन होगा। आई एम अज्यूमिंग। अच्छा, ब्रेन स्टॉर्मर, ब्रेन स्टॉर्मर के भी कुछ क्वेश्चन देखे थे।
देखा क्या है? नहीं, ये नहीं देख रहा था। मैंने 100 एयरलाइंस ऐसे बोल सकती हूँ। अरे, देखा था, ग्रीन बुक का क्वेश्चन है। चल, हाँ, कोई है क्या प्रोबेबिलिटी का तेरे पास पार्क के लिए? मैं तो ग्रीन बुक से देखने वाला था, अब ये बोल रहा है इसने करी हुई है 50%। चल, ठीक है, फिर मैं देखता देखता हूँ, रुक जा। हूँ। पार्क 37 into 73। 37 into 73, हम्म 372, 3 2 and 7321, 100 9. 2701. 48 into 62। 2 8 16 6 आएगा लास्ट में। So, plus 2976. है 91 into 19। अच्छा, एक ग्रीन बुक का ही सवाल है। एक क्लॉक है, उसको ऐसे वो गिरी है कि हर एक पोर्शन का जो सम है वो इक्वल है। 3 पोर्शन में वो टूटी है, हर एक पोर्शन का सम इक्वल है, तो कैसे टूटी होगी? मतलब सेंटर से थोड़ा सा ऑफसेट। एग्जैक्टली बता, हर एक उसमें कितने नंबर, कौन कौन से नंबर्स हैं? हर एक पोर्शन में जो नंबर्स है उनका सम सेम है। हाँ।
कर रखा है ये भी क्वेश्चन, बस याद नहीं है आपको। क्या? मतलब क्वेश्चन कर रखा है ये भी, बट आंसर याद नहीं है, तो लॉजिक पता है, लॉजिक से आंसर आ जाएगा। हाँ, लॉजिक बता दे। अरे लॉजिक ये है कि जैसे एक सेंटर है, तो मतलब सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि यहाँ से तीन पार्ट ऐसे करेंगे, बट ऐसा नहीं होता, सेंटर के ऊपर से भी काट देते हैं और फिर ऐसे करके घुसा देते हैं। मतलब ये तो बहुत क्या, बट ठीक है। राधा देखना, एक व्हाट्सएप पे भेजा क्वेश्चन। थोड़ी इमेज ऐसी टेढ़ी सी है, रीडेबल होना चाहिए। With the weight of the green triangle and pounds to the balanced. It weighs 144 pounds in total. मतलब सिस्टम बैलेंस है, तो हाफ हाफ। small. Z equals to 4 by half. Around 6 point something something. ठीक है। हाँ,
सिक्स पॉइंट समथिंग समथिंग। कैसे किया अप्रोच के? मतलब जो ट्वाइस ऑफ स्टार है दैट इज इक्वल टू रेड, हम्म, and twice of blue is equal to green. हम्म। Twice of green plus gray is equal to red plus twice of star, which is four star. आंसर गलत है तेरा जो है। हाँ, आंसर गलत है, सिक्स पॉइंट समथिंग नहीं है। विदाउट इक्वेशन सॉल्विंग सोच कैसे कर सकते हैं? without equation solving। अगर मैं बोलूँ 10 सेकंड में करना है सवाल तो। 10 सेकंड में हम्म, अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। ओ, इधर 72 गया, एंड जितना ये है इसका हाफ इधर है, दैट इज इक्वल टू कुछ कुछ चमक रहा है पर एग्जैक्ट क्या समझ? लॉजिक नहीं आ रहा। मतलब एक साइड से ट्रैवल्स करेंगे हम्म, तो एक साइड का 72 है, हम्म, फिर जैसे ऊपर ग्रे है और नीचे भी एक ग्रे है, हम्म। तो इस साइड इक्विवेलेंट करने के लिए दिस पार्ट इज देयर मस्ट बी अ ग्रे, राइट मोस्ट का इक्वल टू ग्रे होगा। 10 सेकंड में तो फिर भी नहीं हो रहा। अगर टोटल 144 है हाँ। तो दोनों पार्ट्स का वेट 70 to 72 होगा। हाँ। अगर मैं लेफ्ट वाले में राइट वाला देखूं हाँ। तो उसका वेट 36 होगा। हाँ। सही बात। हो गया, इधर वाले का एस 18 होगा, ठीक है, उस वाली ब्रांच से हो जाएगा क्या आंसर है? 36, दैन 18 इधर, 18 इधर, 9। नहीं। व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ एक बार उसको दो। 9 ही तो हुआ। जो भी अप्रोच आ रही है बोल बोल के एक बार सोच। जो भी मतलब ये वाले में ना जो भी सोच रहा है, हाँ जो भी सोच रहा है बोल बोल के सोच। सर्कल बनाएंगे, सर्कल में जैसे एन एन पॉइंट्स हैं, एन पॉइंट्स हैं, एन सी टू आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू और एन कॉर्ड्स अगर दो दो इंटरसेक्ट करती है, हाफ let's say suppose endpoints are labeled
in circular order A1, A2, B1, B2. For chord A1, A2, and B1, B2 intersect, and only endpoints appear in order A1, B1, A2, B2. So for any two chords, probability of their intersection is half, which is and for n chords, number of distinct pairs will be NC2. Expected हो जाता है probability times पर so half into NC2 is half into 99.5 45 by 22.5. कैसे किया? Let's say अपनी एक chord उसके एंड पॉइंट्स A1 A2 है और दूसरी वाली के B1 B2 है। हम्म, तो अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑर्डर जो होगा वो A1 B1 A2 B2 होगा सर्कल पे। सो लेट्स से 4 पॉइंट्स है, ठीक है। सो इंटरसेक्ट मतलब अगर 4 पॉइंट्स है तो कोई भी एक कॉर्ड के लिए अपन ऑल्टरनेट पॉइंट्स चूज कर सकते हैं। अगर 4 पॉइंट्स हैं तो कोई भी एक कॉर्ड के लिए अपन ऑल्टरनेट पॉइंट चूज सकते हैं, ठीक है। हम्म, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी समथिंग एंड जो मतलब चार में से दो पेयर बनाना है जिसकी कॉर्ड बनेगी एंड उसमें 50% of the time they intersect and 50% of the time they do not intersect. ये तो ठीक है। तो फिर को 2 पेयर सिलेक्ट कर रहा है आउट ऑफ 4C2, तो 1/3। नो, अगर अपने पास 4 पॉइंट्स हैं ठीक है। तो जो भी ऑल पॉसिबल कॉर्ड्स है बनेगी सर्कल पे, हाँ। तो उसमें 50% ऑफ द टाइम दे इंटरसेक्ट एंड 50% ऑफ द टाइम दे डू नॉट इंटरसेक्ट। हाँ, सो इंटरसेक्शन की कोई भी दो कॉर्ड्स की प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई ना। 4 पॉइंट है। आंसर 22.5। वापस क्या गलती करूँ? 4 पॉइंट्स ले लेते हैं A1 A2 B1 B2। अब A1 B1 A2 B2 ऑर्डर में लाना है तो ऑल्टरनेट चूजिंग करनी है ना। तो 50% ऑफ द टाइम्स ऑल्टरनेट हो जाएगा अगर अपन A1 A2 B1 B2 को से अरेंज करें एनसी से। तो हाफ ऑफ द टाइम्स ऑल्टरनेट आ रहे हैं और हाफ ऑफ द टाइम्स मतलब पेयर्स में आ रहे हैं। लेट्स से एक कॉर्ड है मेरे पास, वो हम्म। बनी हुई है। हम्म। अब एक और कॉर्ड आती है, हम्म। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इंटरसेक्ट करेगी उससे? हाफ ही होगी। हाफ ही हुई है। मतलब इस केस में एक पॉइंट अंदर वाले सेक्टर से चूज करना पड़ेगा, एक पॉइंट बाहर वाले से चूज करना पड़ेगा। अगर दोनों पॉइंट्स मैंने एक ही साइड से चूज कर लिए तो कभी होगा नहीं।
और अगर मैंने एक पॉइंट उससे चूज करा और एक पॉइंट उससे चूज करा तो हाफ होगी। ठीक है, तो राइट। और अगर मेरे पास ऐसे 10 कॉर्ड्स है, हम्म, तो हर एक नई कॉर्ड, जैसे एक कॉर्ड थी, दूसरी कॉर्ड आई, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है इंटरसेक्शन की, फिर दूसरी कॉर्ड आई, उसकी दोनों के साथ प्रोबेबिलिटी हाफ है इंटरसेक्शन की, फिर तीसरी कॉर्ड आई उसकी दोनों के साथ प्रोबेबिलिटी हाफ है, चौथी कॉर्ड आई उसकी तीनों के साथ प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो ऐसी 10वीं कॉर्ड आएगी। तो अगर दूसरी कॉर्ड आई, उसकी हाफ थी, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हो गए एक्सपेक्टेड 1 इंटू हाफ। दूसरी तीसरी कॉर्ड आई तो 2 इंटू हाफ। ऐसे ही चलते चलते 10th कॉर्ड आएगी तो 9 इंटू हाफ। ओके। तो 9 इंटू 10/2 कितना हो गया? 9 इंटू 10 90/4 22.5। इसका आंसर यार 15 है। आई थिंक अपन कुछ गलती कर रहे हैं, मेरे को भी अभी रियलाइज नहीं हो रहा कि क्या गलती कर रहे हैं, हाउ? लेकिन आंसर इसका 15 है। हाउ? सॉल्यूशन मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था। ठीक है, ये स्किप करते हैं एक बार के लिए, पहले डी ऐसे कर लेता है जब तक मैं सॉल्यूशन देख लेता हूँ क्या मिस कर रहा है। देखना ये क्वेश्चन किया हुआ है। व्हाट्सएप की। खराब है, इसका थर्ड वाला नहीं हुआ था, फर्स्ट टू हो गए थे। जो हार्ड वाला प्रॉब्लम है, हम्म, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 3, वो नहीं हो पाया था। ये वाला कैसे किया था? लूप से हो गया था। लूप से हो गया था क्या ये वाला? मतलब सॉल्यूशन दिख रहा है ना स्क्रीन पे, स्क्रीन में दिख रही थी। अच्छा। राइट, हाँ, ये तो लूप से हो जाएगा ये वाला जब इसमें। हाँ, हम्म, ठीक है। थर्ड वाला नहीं हो पाया था। हम्म थर्ड वाला, राइट, थर्ड वाला अच्छा क्वेश्चन था। बाद में देखा था कैसे हुआ था, सॉल्यूशन पता है उसका? थर्ड वाले का नहीं, उसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखा। बाद में ठीक फ्यूचर के लिए रखा। है, राइट, समझ में अपन एक गलती जो कर रहे थे इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स वाले में, वो ये थी कि लेट्स से 4 पॉइंट्स हैं। हम्म। तो जैसे ही मैंने 1 को 2 से कनेक्ट कर दिया, हम्म। तो 3 और 4 ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए। हम्म। तो इसमें इंटरसेक्शन हुआ नहीं। 1 को 2 से कनेक्ट कर दिया था, हाँ नहीं हुआ। 1 को 3 से कर दिया तो हो गया। तो हो गया, हम्म। और 1 को 4 से कर दिया तो नहीं हुआ। तो नहीं हुआ। 2 को 4 से कर दिया। 2 को 4 से कर दिया है सिमेट्रिक टू 1 को 3 से कर दिया, वो अपन ने ऑलरेडी काउंट कर दिया। तो 1 को 4 से कर दिया भी तो सिमेट्रिक हुआ ना, 1 को 2 से कर दिया तो। 1 को 2 से कर दिया, 1 को 4 से कर दिया, कैसे सिमेट्रिक 4 को 1 से कर दिया। है? हाँ, नहीं नहीं, अब मैं ओनली देख रहा हूँ कि 1 है, 1 के हम्म। पास कितने क्या किससे कनेक्ट कर सकते हैं? या तो 2 से होगा, या 3 से होगा, या 4 से होगा। हम्म। किसी भी एक से हो जाए। हम्म। तो अगर 2 से मैंने करा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। हम्म।
उस केस में इंटरसेक्शन नहीं होगा कॉर्ड का। नहीं होगा। ओनली 3 से करूंगा तभी होगा। हाँ। तो फिर ओनली 1/3 प्रोबेबिलिटी है 4 पॉइंट से केस में दो कॉर्ड्स के इंटरसेक्ट होने की। मतलब जो आप बोल रहे हो उस हिसाब से तो यही आ रहा है, तो वन क्यों बाय है? थ्री मतलब जो आप लॉजिक बता रहे हो उससे तो 1/3 ही होगी। हाँ। और 1/3 है, और मेरे पास अब 10 पॉइंट्स हैं, हम्म। जिनमें से 2 पॉइंट को चूज करने से मेरे पास कॉर्ड बने। हम्म। जिन्हीं भी 2 पॉइंट को मैंने चूज कर लिया, उससे मेरी 1/3 प्रोबेबिलिटी है इंटरसेक्शन होने की। 10 पॉइंट है, 2 पॉइंट पे चूज कर लिया। ठीक है। 10C2, this is the number of combinations of points, into 1/3 is number of पर वो नंबर ऑफ intersections। पॉइंट्स की क्यों ले रहे हैं MC2? नंबर ऑफ पॉइंट्स थोड़ी देंगे, 10 तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स हुआ ना। बट जरूरी थोड़ी है कि और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स सही बने। हम्म, हम्म। पता नहीं यार, इसका सोल्यूशन मेरे को देख के ही बताऊंगा, याद नहीं आ रहा। ठीक है। हम्म, ठीक है। ये ट्राई करना।
टीचर। एक तो बीडी लगेगा। हम्म। हाँ। ये लोग मैप्स है ग्रीडी से हो जाएगा क्या? किससे? ग्रीडी से। ग्रीडी से हो जाना चाहिए, पर स्नैपचैट में शायद डीपी यूज होता था। राइट, मैप से प्रॉब्लम। एक बार सोच, ग्रीडी क्यों नहीं लगेगा? ग्रीडी कहाँ फेल होगा? मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि अपन सारी चीजें खरीद लें तो अपना नंबर ऑफ पेजेस मैक्सिमम आ जाए, या फिर अपन नंबर ऑफ पेजेस मैक्सिमम कर लें तो अपन ज्यादा बुक खरीद पाए। ऐसा नहीं है इसमें, इसलिए ग्रीडी फेल हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि कोई ऐसी बुक हो जिसकी पर पेज प्राइस जो है वो कम हो, हाँ। लेकिन नंबर ऑफ पेजेस जितने मैं परचेज कर पा रहा हूँ वो ज्यादा है। हम्म, जैसे फिफ्थ वाली है, मतलब सेकंड बुक, फाइव हम्म, प्राइस है और एट पेजेस हैं, हम्म। तो उसमें रेशियो पर पेज का आंसर कम है। हाँ। ग्राफ आता है, ग्राफ एल्गोरिथम। साफ मतलब ऐसे कोड में प्रैक्टिस नहीं है ज्यादा, बट मेनली वो आता है theoretical। ठीक है। ईशान, कुछ पूछना है ठीक है, प्रोबेबिलिटी? रुक जा। हाँ, मैं प्रोबेबिलिटी का डाल रहा हूँ, रुक। ये देख एक बार। लोड नहीं होता। और इन लाइन
इसका अप्रोच बता दे एक बार, सोच के मतलब कैसे करेगा। First person unloading to the same as that is someone who already bought. क्या? So, not someone who has already bought an ice cream. How to get this very common. The first person है लाइन में वो तो उसको तो कभी मिलेगा ही नहीं। ये जो लाइन में फर्स्ट पर्सन है उसको नहीं मिलने वाला कभी भी। जो सेकंड पर्सन है जिससे लाइन में मैं kth नंबर पे हूँ तो मेरे आगे वाले के -1 है। तो बर्थडे मैच की प्रोबेबिलिटी के -1 तो कौन सी सबसे ज्यादा जाएगी। अपने आप को nth पोजीशन पे मान के सॉल्व करने की कोशिश वही करो। वही कर रहा हूँ अपने आप को kth पोजीशन पे माना। तो बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी के -1/365 हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आई एम द फर्स्ट पर्सन टू मैच अ प्रीवियस बर्थडे। अब ये निकालना है कि जो के बराबर 2 है तो के बराबर के-1 इसमें से किसी का भी पहले वाले से मैच ना हो। ठीक है। हाँ मतलब तुझसे पहले कोई नहीं आ जाए। हाँ तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा 1 - 1 - k - I/365 where k goes from 2 to n। और फिर अपने को भी मिल जाए into k - 1/365। आंसर किस फॉर्म में लिखना है।
आंसर मतलब आएगा तो देख इंटीजर ही आएगा, nth नंबर पे तू खड़ा होगा तो वो बस निकालेगा कैसे, मेरे को तो ये जानना था। एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना वो। ठीक है। नहीं वही तो, तो देखो मैक्सिमाइज करना है, जो तेरी हाँ प्रोबेबिलिटी है कि एक पोजीशन पे रह के तेरी जो प्रोबेबिलिटी है उसको तुझे हाँ मैक्सिमाइज हाँ करना है, हाँ तो तू उसको प्रोबेबिलिटी। डिफरेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट हाँ टू वो टू ठीक और है ठीक है जीरो ठीक डॉट। है। तो मैं इन ठीक पे है खड़ा हूँ। मतलब आ जा। ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है हाँ। हाँ, भारत, टेल मी वन इंस्टेंस जब तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था वो आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा था और तूने उसको वापस ऑन ट्रैक लाया। प्रोजेक्ट आउट ऑफ ट्रैक जा रहा था। मतलब प्रोजेक्ट आउट ऑफ ट्रैक नहीं जा रहा था बट वो हो नहीं रहा था, ऐसा है। आउट ऑफ ट्रैक जैसा नहीं है। ये अंतराल में लॉजिक डिफाइन करना था तो लॉजिक नहीं मिल पा रहा था, तो वो लॉजिक मैंने फाइंड किया था। आउट ऑफ ट्रैक जैसा मतलब कोई प्रोजेक्ट किया भी नहीं है अब तक। ठीक। तू कोई टेक टीम का पार्ट क्यों नहीं है? मतलब मेरे को ऐसे अंदर से एक्साइट नहीं हुआ कि मेरे को कोई टेक टीम ज्वाइन करनी है, कि जैसे मैकेनिकल डिवीजन क्यों ज्वाइन करूँ, मतलब मुझे कॉलेज आने से पहले पता था मुझे टेक में ही जाना है कहीं ना कहीं। हम्म, मैकेनिकल डिवीजन ज्वाइन करके कुछ नहीं करता, ना इलेक्ट करता, क्योंकि इलेक्ट में भी इलेक्ट कोर में जाना नहीं है। बचा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर उनका वैसा डेवलपमेंट वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब उनका सॉफ्टवेयर ऐसा रहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको प्रोग्राम करो। तो उसमें भी मुझे ऐसा कुछ इंटरेस्ट दिखा नहीं। और मतलब सब लोग टेक टीम कर रहे थे और मेरा मेरा ऐसा है, मैं सबके साथ से नहीं चलता, मैं अपने साथ ही चलता हूँ। तो इसलिए मेन रीजन तो यही था। तेरी सीपीआई कितनी है? मेरी सीपीआई 8.02। अच्छी है तो मेंशन क्यों नहीं कर रहा रेज्यूमे में? अच्छी तो नहीं है, मतलब सीपीआई तो वो करता है ना, प्लेसमेंट पोर्टल डालता है ना। लेकिन जब अपलोड करेगा कहीं रेज्यूमे तो उसमें डाल के देगा ना हेडर। एक्सटर्नली। डाउनलोड करेगा ना जब प्लेसमेंट पोर्टल से तो हेडर के साथ आएगा। हाँ। अच्छा वैसे ही। ठीक है। मतलब अच्छी तो नहीं है, आई थिंक। सुनिए। मतलब आईआईटी बॉम्बे में सीपीआई इन्फ्लेटेड है थोड़ी, बाकी आईआईटी के हिसाब से देखे तो इट इज गुड, बट आईआईटी बॉम्बे के हिसाब से नहीं है। नहीं, मैं बोलूँ क्यों नहीं है अच्छी एट, अच्छी क्यों नहीं कर रहे रेज्यूमे? मतलब बहुत कम एफर्ट्स के साथ भी अगर 8 आ गई तो आई डोंट थिंक अच्छी है, ज्यादा रेंज एफर्ट्स क्या नहीं है? डाले। क्या? रेंज क्या है सीबीआई की? अच्छी वाली मेरे हिसाब से रेंज क्या? नहीं, आई एम आस्किंग कि तेरा पहले शुरुआत में कौन सा डिपार्टमेंट था, फिर तूने सिविल उसमें सिविल। सिविल और फिर उसमें आ गया हाँ। लिबरल सेंटर एजुकेशन वाला। या अभी कौन कौन से कोर्सेज कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट है? दिखा देता हूँ। इसमें ये दोनों कोर है, कंपलसरी है। प्रोग्रामिंग में भी बीबी है। ये वाला तो आईओआर का लैब है, मतलब ये लैब मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, इसमें ज्यादा ऐसे डेप्थ नहीं है। नाम इट्सएम नहीं, हुआ। स्प्रिंग सेमेस्टर। ये हाँ। प्रोग्रामिंग तो करनी है तेरे को। मतलब ये बीबी इसलिए क्योंकि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो ये कोर्स मेरा स्टार्ट होने से पहले मुझे इतना तो आता ही था कि मतलब मैं ऑटम वालों का CS 101 सॉल्व कर रहा था। बट इस स्प्रिंग में मैंने कुछ करा भी नहीं, तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से थोड़े से लग गए। ठीक है।
देखो लास्ट टाइम सबसे अच्छी स्लीप कब आई थी? लास्ट टाइम सबसे अच्छी स्लीप, क्या? नींद नींद। स्लीप। स्लीप। स्लीप तो यार, स्लीप मेरी मतलब ऐसी है, मैं कभी भी सो सकता हूँ, कभी भी उठ सकता हूँ, कितने भी नींद पे जिंदा रह सकता हूँ। तो स्लीप अच्छी तो नहीं है। मतलब आप अगर मेरा ग्राफ देखो, मैं कब सो रहा हूँ कब उठ रहा हूँ, वो थोड़ा सा ज्यादा रैंडम है। It should be, ideally it should be between the two lines. ये लास्ट वन का। रात को 2 घंटे सो जाता क्या तो अभी दिन में सोना क्या पड़ा। प्रेफर करता है तू, टीम प्रेफर करता है या फिर इंडिविजुअली काम करना पसंद मतलब अगर लाइक माइंडेड पीपल हैं तो आई वुड करता है? डेफिनेटली प्रेफर टीम, बिकॉज ई यंत्र में मुझे दिख गया कि टीम का कितना रहता है। बट हम्म, फोर्स प्रोजेक्ट्स में लाइक माइंडेड पीपल नहीं होते तो इंडिविजुअली बेटर आउटकम आ जाता है। ठीक है। अभी तक over your 18 19 years your life, what is the hardest problem you have solved? Can be anything in life in general. So one of the most difficult times was that during when I was in 10th, during COVID, my father died in that time because of COVID. Right. So I have to recover from that emotionally. So I went for running 5 months every single day. Didn't even skip a single day. Uh, Tell me the most impactful thing you have done in your life till now, and what impact Impactful. did you make by your actions? मतलब ऐसी कौन सी चीज थी जिसमें तेरे एक्शंस की वजह से कोई इम्पैक्ट आया था, और सबसे इम्पैक्टफुल चीज क्या थी अभी तक? मतलब ऐसा कुछ नहीं है इम्पैक्टफुल, जैसे कुछ एक्सटर्नली इम्पैक्ट हुआ हो बट खुद पे इम्पैक्ट हुआ है। तो अभी तक 18 19 साल में सिंगल इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया है? मतलब किस टाइप का इम्पैक्ट, एग्जांपल दे सकते हो? एग्जाम्पल नहीं देना चाह रहा मैं, क्योंकि फिर उस डायरेक्शन में सोचेगा, लेकिन कोई भी तेरे एक्शंस जिससे किसी चीज पे इम्पैक्ट हो, चल ठीक है, लेट्स से गाइडिंग अ जूनियर, ये सोशल उसमें चलेगा, लेकिन कैन बी एनीथिंग, और गाइडिंग अ जूनियर जिससे उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट हुआ था। हाँ, सो इन दिस डायरेक्शन आई हैव guided people related to their mental health. हम्म, So I am kind of a person who don't take stress, हम्म, but there are people who are always worried about and overthinking. So I had some conversations with some of them my friends and classmates. So yeah, I have solved these types of problems in their life. And लास्ट टाइम तूने टीम में कब काम किया था? last time टीम में मतलब एथलेटिक्स रही, एथलेटिक्स में ठीक है, उसको साइड में रखते हैं।
टीम में भी ई अंतर चल रहा था, ई अंतर में टीम ही है, टीम ऑफ वही थ्री, टीम है। बट ओनली टू पीपल वर्क, ऑलरेडी टू पीपल। ओनली टू पीपल वर्क, तो थर्ड पर्सन का अभी इतना इंटरेक्शन नहीं, मतलब दो जनों और से होता है। इससे पहले कौन सी टीम थी? कोई और टीम में काम मतलब किया? नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल उसमें किया था, तो एक्सेलरेटर ई एन बी बस होते हैं, ई एन बी बस में तो इट वॉज वेरी गुड, मतलब so they have three people, and let's say tomorrow we have presentation, so we didn't have prepared for anything, and one of them had went to Bangalore for some basketball tournament and he got injured there. So we two people have to do all that preparation, script and all. So overnight we prepared the whole PPT and pitched desk and all. And for that round we were the top team in that panel. And some other competitions एक्सेलरेट उसमें तो अकेले बनाया था पूरा। टीम में होता है तो व्हाट डू यू प्रेफर, डूइंग वर्क और कोई और लीड करे, या फिर तू लीड करे और बाकी लोग सपोर्ट करें? डिपेंड्स ऑन द डोमेन, लेट्स से ई अंतर है तो मेरा दोस्त हम्म। मैकेनिकल में है एमआरटी में, तो हम्म। उसने मतलब ऐसे बहुत चीज़ें पढ़ रखी है, रॉस वॉस और ये सब पढ़ रखा है, तो हम्म। उसमें वो लीड करता है और मैं अपने इनपुट्स देता हूँ। बट हम्म। जैसे अब कोई ग्रुप कोर्स प्रोजेक्ट है, जैसे डीएसए का भी प्रोजेक्ट होगा, तो उसमें मैं ही लीड करूंगा क्योंकि वो मेरा साइड का थोड़ा सा डोमेन है। लास्ट बार लड़ाई का कोई टीम प्रोजेक्ट टीम प्रोजेक्ट में लड़ाई नहीं हुई, अभी तक तो नहीं हुई। में तेरा कोई क्लैश ऑफ ओपिनियन नहीं होता? नहीं मतलब मैं एग्री कर जाता हूँ अगर मुझे सामने वाले की बात में थोड़ा सा भी सेंस लग रहा है, मतलब आई एम अ फ्लेक्सिबल पर्सन, मैं किसी भी डायरेक्शन में वर्क कर सकता हूँ, बट सामने वाले के हिसाब से भी देखना पड़ता है ना। डिसिप्लिन है क्या? क्या? हाउ वुड यू रेट योरसेल्फ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 ऑन डिसिप्लिन? ऑन डिसिप्लिन, ओके, सो फॉर स्पोर्ट्स इट इज 5 on 5, हम्म। और previously it was for acads and all, before joining CLA it was 2.2.5, but after joining CLE it is growing up day by day. Abhi I would say it is around 3.5 or 4. और जब कुछ, ठीक है, रिस्क टेकिंग ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5? But रिस्क टेकिंग ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5? risk taking in which domain? Huh. So risk इन taking I जनरल। would say 5 on 5, because department switch is a risk. हम्म। So yeah. और कोई रिस्क इसके अलावा लिया हो बड़ा? मतलब sports में push करा है risk wise तो. So the max I had ran was 21 kilometers. So I signed up for a full marathon, which was 42 kilometers. And that was 1 month after that registration. So I don't think that it is a risk. So I had that confidence that I can do easily, and I did well. ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 ऑन मॉडेस्टी? हेलो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
Can you just change the word some other? कर ले तू change तेरे हिसाब से क्या आंसर होगा Sorry. तेरे को चेंज करना है वर्ड मॉडेस्टी से कुछ और ह्यूमिलिटी हाँ. चेंज करना है Can you just explain in what direction should I think about this? ह्यूमिलिटी इन द सेंस Yeah, so I did a test, personality वाला. तो उसमें my personality trait was humility. इंटरेस्टिंग तेरे को लगता है तू तेरे में है ह्यूमिलिटी या फिर एरोगेंस ज्यादा है या फिर क्या Arrogance तो नहीं है, हम्म कॉन्फिडेंस है. हम्म ठीक है यही सब था कुछ पूछने था Rate your interview on the scale of 1 to 10. 9. 9. इतना अच्छा गया. मतलब ज्यादा इंटरव्यू दिए नहीं है अभी तक, कोई भी टेक टीम का नहीं दिया, कोई भी पीओआर का नहीं दिया. तो आई डोंट नो हाउ टू रिलेटिवली जज. मतलब ये क्यों नहीं? मतलब वो बता दिया ना किसी, टेक टीम का तो बता दिया. पीओआर का ये था कि एज सच इंटरेस्टिंग नहीं लगा, मतलब पोस्टर्स बना के क्या इंस्टाग्राम पे, इसकी जगह मैं कुछ और पढ़ ना लूँ, ऐसा है. नहीं, टेक टीम का एक बार वापस बताना. टेक टीम का ये प्योर का था तो कि ठीक. टेक टीम का ये था कि कोर में जाना नहीं था, मैकेनिकल कोर नहीं जाना था, इलेक्ट्रिकल कोर नहीं जाना था. तो उधर टाइम इन्वेस्ट करने की जगह रोज 2-4 घंटे की जगह मैं सेल्फ डेवलप कर लूँ कुछ और. अच्छा. मतलब कुछ ठीक. कुछ और जगह ट्राई किया था, डीएवी टीम ट्राई किया था. तो डीएवी टीम में क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, बट डब्ल्यूएनसीसी ट्राई नहीं किया हाँ, WNCC भी जा सकता था. नहीं, डब्ल्यू एन सी सी में वो तो सॉफ्टवेयर ही है फुल स्टैक सोचा था ट्राई करने का. बट अब डब्ल्यू एन सी सी मेरे बैचमेट्स कन्वीनर्स हैं, उनको देख के लगता है कि मतलब अच्छा हुआ नहीं किया. मतलब मतलब पूरा पूरा नहीं पता, बट क्या ही कर रहा है उन्होंने अभी तक. डब्ल्यू एन सी सी एक मतलब एग्जांपल देता हूँ, एथलेटिक्स में थी एक. तो दैट पर्सन स्टॉप कमिंग टू ट्रेनिंग नाउ आफ्टर ज्वाइनिंग डब्ल्यू एन सी सी. और आज तक कुछ लाइक माइंडेड पीपल भी नहीं है. ठीक है, बट कोडिंग सबको समझा आती है नहीं मैं वहाँ पे. अगर WNCC एथलेटिक्स में is आना not बंद about कर दिया उसने डब्ल्यूएनसीसी में तो उससे क्या ही होगा WNCC is, I don't think solely coding. हाँ, सोली नहीं है, बट स्टिल उनके मेंबर्स को फिर भी कोडिंग आती है ठीक ठाक लेवल की. नो, एवरेज से ऊपर लेवल की, आई गेस. तो एवरेज से ऊपर तो मेरे को कॉलेज आने से पहले आ गई थी ऐसा. तो थोड़ा बहुत डीएससी कॉलेज आने से पहले कर लिया था मैंने. तो बढ़िया. तो फुल स्टैक डेवलपमेंट करना डेवलपमेंट डेवलपमेंट नहीं पसंद था. करते ही हैं डेवलपमेंट तो नहीं मतलब करते क्या डेवलपमेंट में अभी तक आज तक कुछ इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि पता नहीं, मतलब ज़्यादा ट्राई नहीं किया हो सकता है इसलिए, या फिर जब भी किया तो एआई से किया. जब लवेबल ही बना देता है पूरा तो पता नहीं, मैं मतलब एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसमें भी इतना आइडिया नहीं. पूछना रहेगा नहीं, बस. और पार्क तेरे को पूछना Not like how feedback, just feedback.
मैं तेरे को बाद में देता हूँ, मेरे को मैसेज कर, बात करते हैं। ठीक। ठीक है, ठीक, बाय। थैंक यू। ठीक है, बाय बाय। कैसा लगा देख? काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है। इंटरेस्टिंग है। पहले कोडिंग वाले बने क्या? कोडिंग आती है उसको, कोडिंग कर लेगा, एप्टीट्यूड ठीक है। मैथ्स आ, अच्छा नहीं ते, लगा मेरे को। तेरा वाला क्वेश्चन, तूने जो क्वेश्चन दिया था वो कैसा गया था? ठीक तो नहीं गया, मतलब वो सोच नहीं पाया था। पहला वाला भी नहीं सोच पाया था, क्लॉक वाला भी। क्लॉक वाला बता तो दिया था उसने। वो बोल रहा था बीच के बाजू से कटेगा, बट उसका मतलब बेसिक लॉजिक नहीं क्लियर था, उसको याद था बेसिकली ये वाली चीज। ठीक है, उसने कर रखे हैं चीजें, आधी ग्रीन बुक कर रखी है उसने वगैरह, तो ठीक है। बाकी डीएसए क्वेश्चन था, वो उसने देख के समझ में आ गया उसको नैपसैक प्रॉब्लम है। बायसेल मैथ, वाला। कौन सा वाला? बायसेल वाले 1-2 कर रखे थे उसने, उस ड्राइवर की शीट भी लगा रखी है। और मैथ्स तो ठीक ही लगा मेरे को, मैथ्स तो स्लो कर रहा था। मैथ्स मैथ्स स्लो कर रहा था, वो मेरे को एक नेगेटिव पॉइंट लगा, काफी ज्यादा स्लो कर रहा था। और हाँ बाकी कैजुअल एटीट्यूड है काफी, पहले मेरे को वो काफी नेगेटिव हाँ, पॉइंट लग रहा था। फर्क नहीं पड़ता मतलब है उसको। फर्क नहीं पड़ रहा टाइप, लेकिन हाँ वो वही। वही थोड़ा लगा मेरे को बहुत ही ज्यादा कैजुअल है। हाँ, सीपीआई बट का भी जिस हिसाब से वो बता रहा था उस हिसाब से लग रहा था कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब उसको फर्क पड़ आ नहीं रही रहा है। है जो है ठीक है। लेकिन वो भी है कि जब उसको चीज करनी है तो वो कर ले रहा है। जैसे जब उसके फादर की जैसे डेथ हुई, क्या क्या था? तो फिर 5 महीने तक भागना रोज, वो हाँ मतलब वो 21 तो ठीक किलोमीटर की है। मैराथन। और ये भी क्वेश्चन भी 110 120 कर रखे हैं लीड कोड पे। बाकी वैल्यूज भी, मतलब एरोगेंट तो नहीं लगा, मतलब वो एरोगेंट तो है नहीं कि है, बट हाँ, मतलब वो वो है थोड़ा सा इग्नोरेंट है कि उसको। अनशेमफुली हिमसेल्फ है, मतलब जो हाँ हाँ हाँ, और हाँ, मतलब डज नॉट केयर मच कि लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। वही। बाकी खुद को उसने 9 रेट किया, मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लगा। ठीक है, मतलब चले। बाकियों से कैसा लगा देखो कंपैरिजन में, मतलब मैंने तो एक का ही सुना है, इसलिए मेरे को इस हिसाब से हो सकता ये है बेकार लग रहा हो। ये अलग था इंटरव्यू काफी। पहले तो कुछ, एक तो वो हो गया था कि जो भी मैं क्वेश्चंस लेके आया था इसमें सारे कर रखे थे, तो एक पॉइंट के बाद मेरे को क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा था, तो इसलिए एक तो चीज वो हो गई। हाँ। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं मेरे को जिसने क्वेश्चन कर रखे हैं सारे के सारे, मतलब 4-5 मेरे सेट क्वेश्चन है, सारे कर रखे थे। अच्छा, इसने सारे कर रखे थे। मतलब सारे एज इन उससे थे ना, ब्रेस्टर लगा रखा था। ऑलमोस्ट उसको आइडिया था। हम्म। और तो इसलिए थोड़ा आईक्यू पे और टेस्ट करा जा सकता है एप्टीट्यूड पे। एप्टीट्यूड में हम्म, ठीक है, ठीक है, मतलब आई जम थिंक सकता है, हाँ, ऐसा इतना वो जम नहीं है। सकता है, हाँ। हाँ, मतलब एक अलग माइंडसेट से आएगा। बस ओनली प्रॉब्लम जो मेरे को लग रही है इसमें, वो डिसिप्लिन की लग रही है, कि ऐसा ना हो कि हाँ वो, डिसिप्लिन वही। हाँ, डिसिप्लिन में वो कम लग रहा है कि थोड़े टाइम के बाद वो काम ना करे वाली जो चीज़ है वो आ सकती है। वो सीन आ सकता है, अगर उसको अगर इंटरेस्ट नहीं आया तो वो काम नहीं करेगा, जैसे उसने हाँ, बाकी ट्रू, टेक टीम और पीओआर और डब्ल्यूएनसीसी का बोला उसने। ट्रू, 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 अगर इंटरेस्ट नहीं आया तो फिर वो काम नहीं करेगा, ना वो आएगा। और उसको फाइनेंस का भी नॉलेज नहीं है अभी। फाइनेंस का नहीं है। उसने रेज्यूमे में डाल तो रखा है लेकिन उसने कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं किया। कुछ किया नहीं, और वो इंडिविजुअल जो वो डाला उसने टाइमिंग वाला इंटरव्यू शेड्यूल, वो भी ढंग से नहीं किया है। हाँ, वो भी नहीं किया है।
कुछ भी नहीं किया है। स्टॉक वाली जो स्ट्रैटेजी है वो भी उसकी बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है, काम कर गई वो, बस तुक्के से। ठीक है, मतलब ऐसा से। स्ट्रेटजी सोच पाएगा ये। मतलब देख, वैल्यूज हैं, आईक्यू है, स्किल नहीं है, स्किल आ जाएगी। सबसे पहले वैल्यूज ठीक है, बस डिसिप्लिन का वो है, वो बाद में पता चलेगा यार क्या सीन है इसका। मेरे हिसाब से कर सकते ठीक हैं। है, मतलब इसको ले सकते हैं फिर भी। बाकियों के कंपैरिजन में तो अच्छे ही बता रहा है तू, तो फिर ले सकते हैं अगर इसने सब किया हुआ प्रोग्रामिंग वाला तो। मतलब हाँ अच्छा है, आईक्यू वाइज तो ठीक ठीक है। और कितना है अभी है इंटरव्यू? है। कल 3 है। कल नहीं, कल 3 है। हाँ कल 3। करते हैं फिर कल, समझते हैं और लोगों को देखते हैं। ठीक है। और ढूंढता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। ग्रीन बुक मेरे को लगा नहीं था यार इसने ग्रीन बुक कर रखी हुई, क्योंकि सेकेंड ईयर में ग्रीन बुक कौन करता है? कर रखी है, लोगों ने कर रखी है भाई, ग्रीन है। काफी लोगों ने मतलब कर ठीक रखी है, मैंने खुद ने अभी करी है, आके आते तो मेरे को लगा नहीं था, मैं सोचा पूछ लूंगा है। मैं इसमें से। देख ले, ग्रीन बुक के अलावा क्वांट गाइड ही देख। क्वांट गाइड नहीं की होगी इन लोगों ने। ऐसे क्वांट क्वेश्चन गाइड निकालिए करता जो हूँ, वही किसी देख। ने, हाँ किसी ने नहीं कर रखा, और सोल्यूशन अच्छे से देखिए। ठीक है, मैं देखता हूँ देखता हूँ। ठीक है चल। ठीक है चल। तेरी टीम बन गई है ईडीएल की? मेरी बन गई। कौन कौन है तेरी टीम में? मैं हूँ, नूरेन है, कुशाग्र है, मयंक है। कुशाग्र कौन? कुशाग्र गुप्ता है एक बंदा। डीडी का ही है ना? हाँ रेडी का। ठीक है चल। मयंक है, अमृतुल है। बढ़िया। तेरी बनी? हाँ बन गई। मैं, कल्प है, सौम्या है, और प्रथमेश है, सुजीत है, और वो शिखर है। हेलो के। हाँ। 5 की बनानी है, तेरी भी 6 तो की 6 बनानी की है? है। 5 की, 5 5 6 की। लिखा था। एक भी बना, कोई भी चलता है। ठीक है सर। हाँ। चल। बाय फिर, ठीक बाय है। बाय।